Hello student, this is Amit Kumar Sharma from LPM Public School, Gola Bazar. Students, we have studying about 3D shapes on flat surface. So I have told you what is 3D shape. 3D shape is nothing but a three-dimensional shape. Three dimension means the thing or the object which has length also, breadth also and height also. If there is a figure which has length, breadth and height, all three dimensions, then it is called 3D shape. There is another name of 3D shape is solid shape. The 3D shape is also known as solid shape. And what is meant by solid shape? The solid shape is that shape that we can touch, we can feel, we can hold that object, that is called solid shape. Like this pencil we can hold in our hand. So this is a solid shape. And if it is like a cylinder, this pencil is like it. If we have not taken about this part, then this part is known as solid shape and its name is cylinder. There are several 3D shapes such as cube, cuboid, cylinder, cone, prism and pyramids that are called solid shapes or 3D shapes. Now moving on in next topic, we have studied how to draw a map on a flat surface. So on a flat surface, if we want to draw a map, so we have to mention the directions, and the directions in a map is not as we see in our daily life. So on a map, we show direction, north direction in upside, south direction in downside. On our right side, we show east direction, and on our left, we show west direction. So this is how we draw direction on a map. Now moving on further, we now, after drawing a map of a particular area, map is nothing but a sketch of a particular area, we move to how to draw a map of a house, and that is called floor plans. हम इसके बाद मैप सीखने के बाद हम ये सीखेंगे किसी भी हाउस की जो आउटलाइन होती है, अगर उसको हम ड्रॉ करें, आउटलाइन मीन्स ये होता है अगर कोई हाउस है तो उस हाउस में कितने रूम्स है, कितने विंडोज है, कितनी खिड़कियां हैं, कहाँ कहाँ पे सब प्लेस्ड हैं, इस तरह से जो बनाया जाता है एक घर का मैप, जिसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को फ्लोर प्लान कहा जाता है। फ्लोर प्लान से मतलब ये है कि उस फ्लोर का प्लानिंग क्या है, उस फ्लोर पे विंडोज कहाँ पे है, डोर्स कहाँ पे है, वॉशरूम कहाँ पे है, रूम्स कहाँ पे है, बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है। अगर इस किसी भी हाउस को इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से जो फ्लोर प्लान बनेगा, उस तरह से जो मैप बनेगा, उसे ही फ्लोर प्लान कहा जाता है। नाउ अब हम मूव करते हैं फ्लोर प्लान और डीप ड्राइंग्स के बारे में अब स्टडी करेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, विजुलाइज करते हैं यूजिंग स्मार्ट बोर्ड। I'm Paul, grandfather of Sam and Stella. My grandchildren are working very hard on their studies. I think I should go and guide them. So kids, what are you doing? Grandpa, we are working on a project where we have to make a model of a house. That's interesting. How are you doing this? Grandpa, we have first decided the positions of all the rooms in the house. Can you show me the model? Grandpa, the model is not yet ready. We are drafting our plan on a paper. Okay, Stella. This rectangle is the boundary of our house. Grandpa, we want to keep this area open. Here, we
Here, in the area we will make one washroom and here a kitchen. Very good. However, the plan of your house does not include doors and windows. You must mention the measurements of each room as well. Here, let me revise the house plan for you. Stella and Sam, So in this video we have seen that there is a girl and a boy who is drawing the map of his house and his grandfather came. उसके ग्रैंडफादर आते हैं और उसको हेल्प करते हैं, उसको दिखाती है कि हमने मैप इस तरह से ड्रॉ किया होता है और उसके ग्रैंडफादर ने बताते हैं कि फ्लोर प्लान्स को ड्रॉ करने के लिए इन सबके साथ साथ कुछ और चीजों की भी मेंशन करना पड़ता है। जैसे अब ग्रैंडफादर जब आए तो उन्होंने फ्लोर प्लान्स को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। जैसे अगर हम देखते हैं इस वीडियो में, इस पिक्चर में देखते हैं, दिस इज ए फ्लोर मैप। ये एक फ्लोर मैप है। इसमें जब गर्ल ने पहले ड्रॉ किया था तो उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि विंडोज कहाँ पे हैं और डोर्स कहाँ पे हैं। उसने बस मेंशन किया था कि यहाँ पे एक बाथरूम, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे किचन है और यहाँ पे बाथरूम है और यहाँ पे लिविंग रूम है और यहाँ पे एक गार्डन है। लेकिन जब ग्रैंडफादर आते हैं तो ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि फ्लोर मैप ड्रॉ करने के लिए हमको इन सब के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जो हमें मेंशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जब ग्रैंडफादर आए उन्होंने ये बताया कि जब हम फ्लोर मैप ड्रॉ करेंगे तो फ्लोर मैप में हम देखेंगे अगर हमारे पास एक बेडरूम है तो उसमें एक डोर होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे एक डोर को ओपन किया, डोर नंबर 1। ऐसे ही बाथरूम में भी एक डोर होने आ सकता है क्योंकि डोर तो हर जगह होगी। बाथरूम में ये डोर नंबर 2 हो गए। यहाँ पे है डोर नंबर 3 ऑन बेडरूम 3। देयर इज अ डोर ऑन किचन, तो देयर इज अ डोर ऑन किचन, डोर नंबर 4। देयर इज अ मेन डोर, the door number 5. These are all the door. There are 5 doors in this house. Then grandfather told them about drawing the window. He told them about drawing a window. If we see here, there are one window, there is second window on bathroom, 2 windows on the living room, window number 3 and window number 4. There is a window in living room through the garden, जिससे हम लिविंग रूम में बैठ के गार्डन के देख सकते हैं गार्डन में क्या हो रहा है। तो there is a window number 5. There are 2 windows each in kitchen for the ventilation, क्योंकि किचन रहेगा तो वहाँ पे हीट ज्यादा होगी तो वहाँ पे वेंटिलेशन को कायम रखने के लिए या वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए यहाँ पे 2 विंडोज की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने किचन में 2 विंडो बनाया है, विंडो नंबर 6 एंड विंडो नंबर 7। And there are 2 more windows on bedroom 3, that is window number 8 and window number 9. And in bedroom 2 there are 2 windows, so we have mentioned 1 window earlier. Now this is window number 10. So this is how we draw a floor map. तो इस फ्लोर मैप में हम ये भी मेंशन करेंगे प्लेस की जगह पे, मतलब बेडरूम, बाथरूम और किचन वगैरह कहाँ के साथ साथ हम ये भी मेंशन करेंगे विंडोज कहाँ पे रहेंगे। विंडोज की भी पोजीशन को हम इस मैप में ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम फ्लोर मैप को क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास इस फ्लोर मैप में फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर जो भी हो, इसमें हमारे पास 5 डोर्स हैं और 10 विंडोज हैं टू मेक द रूम और टू मेक द फ्लोर प्रॉपर वेंटिलेशन, जिससे उस घर में क्या हो, वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे से होता रहे। और उस तरह से क्या हो सकता है इससे, ताकि उस घर में जो फ्रेशनेस है, एटमॉस्फेयर, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर का जो फ्रेशनेस है उस घर में भी बना रहे। अगर विंडोज कम रहेंगी तो घर की जो CO2 की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इज हाउ वी ड्रॉ ए फ्लोर मैप। So while drawing the floor map, we also mentions where is the door and where are the windows. Now,
Now we resume the video for the further details. What are the floor maps? Let's see. Stella and Sam, do you know what we have just drawn up of the house? Yes, a floor map is a simple diagram showing the layout of all the rooms and spaces of a particular floor in a house as viewed from above. Let's see the floor map of our house. You can see that the dimensions of all the rooms are mentioned on the floor map. Grandpa, who made the actual floor map of our house? It was made by an architect. Who is an architect? An architect is a qualified professional who designs buildings and supervises its construction. Grandpa, in this floor map we have mentioned the lengths and breadths of each room. But how do we depict the height? Good question, Sam. Using the floor map, we cannot make out how this house would actually look or how high the walls and windows would be. For that, we refer to a deep drawing. What is deep drawing? Deep drawing is a special way of drawing an object such that its length, height and width can be depicted together. It is the three-dimensional view of any object. Let's see the deep drawings of some objects to understand better. Here is the deep drawing of a cuboid with its length, width and height. Now let's look at the deep drawing of a cube with its length, width and height. This is the deep drawing of a cone with its circular base and height. And finally, here, the deep drawing of a cylinder, its two circular bases and height. Now let me show you the deep drawing of our house. Now, moving on further, after floor drawing, what is the drawback of floor drawing and how we move further from floor drawing to deep drawing? मतलब फ्लोर मैप ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या ड्रॉबैक्स, क्या कमियां रह गई थी कि उसके बाद हमको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम कहते हैं डीप ड्राइंग। तो फ्लोर ड्राइंग में हमने क्या किया था? फ्लोर ड्राइंग में हमने सिर्फ उस प्लेस का या उस फ्लोर का, उस हाउस का सिर्फ लेआउट बनाया था जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही हम फाइंड कर सकते थे, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती थी। लेकिन डीप ड्राइंग में क्या होता है? डीप ड्राइंग में हम लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट को भी क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। हाइट को भी दिखाया जाता है जिससे हूबहू जिस तरह का हमारा घर है उस तरह हूबहू दिखता है कि ये घर ऊपर से कैसे दिखेगा। उसके फ्लोर को, उसका जो फ्लोर है, टॉप फ्लोर है या फिर उसकी जो छत है, उसको नॉट ड्रा करके हम सिर्फ उस घर का 3D ऑब्जेक्ट या 3D प्रोजेक्ट ड्रॉ करते हैं, 3D शेप में ड्रॉ करते हैं। उससे पता चलता है ये बेडरूम इतनी बड़े है, ये वॉशरूम यहाँ है, विंडोज यहाँ पे है, डोर यहाँ पे है। इस तरह का जो डायरेक्शन होता है उसे डीप ड्राइंग कहते हैं। और जबकि जब हम फ्लोर मैप में ड्रॉ कर सकते थे तो फ्लोर मैप में सिर्फ हम ये दिखा रहे थे कि विंडोज यहाँ पे प्लेस्ड है, डोर यहाँ पे प्लेस्ड है। अब अगर हम इस मैप में देखें, इस मैप में अगर हम देखें तो इस मैप को अगर हम फ्लोर ड्राइंग की तरह पे अगर हम यूज करते तो हमने बस दिखाया था कि यहाँ पे एक विंडो है, हमने विंडो बनाया नहीं था, बस हमने उसको 2D ऑब्जेक्ट में ऐसे ड्रॉ कर दिया था या फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर दिया था कि यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे हमारा वॉशरूम है, यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स हैं, यहाँ पे हमारा किचन है और यहाँ पे हमारे लिविंग रूम है और ये बाहरी गार्डन है। तो वो डीप ड्राइंग थी, वो सिर्फ फ्लोर मैप था या फ्लोर मैप की ड्राइंग थी। उसमें सिर्फ हम लेंथ और ब्रेथ को ही दिखाते हैं। लेकिन डीप ड्राइंग में क्या होता है? डीप ड्राइंग में हम लेंथ ब्रेथ के साथ साथ उस जगह की हाइट को भी दिखाते हैं, जिससे जिस तरह से हमारा घर रेडी होने के बाद दिखेगा उस तरह का उसका एक 3D मॉडल बन जाता है, जिसे 3D मॉडल कहते हैं। उस घर का 3D मॉडल कहते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने घर बनते हुए दिखा होगा तो घर तुरंत ही बन के तैयार नहीं हो जाता है। पहले नींव डाली जाती है, नींव के बाद हर एक कमरा कहाँ पे रहेगा,
विंडोज कहाँ पे रहेगी उसके लिए जगह बनाया जाता है, डोर कहाँ पे रहेगा उस तरह से जगह बना के छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से इसको डीप ड्राइंग कहते हैं। डीप ड्राइंग में लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट को भी दिखाया जाता है, और ये आपके जो घर बनने वाला है उसका एक 3D मॉडल बना के पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। इससे आपको पता चलता है कि घर रेडी होने के बाद किस तरह हमको ये घर दिखेगा। अब हम इस वीडियो को और कंटिन्यू करके देखते हैं आगे क्या चीज इसमें दिया गया है। Let's revise what you have learned. An architect is a qualified professional who designs buildings and supervises its construction. Floor map is a simple diagram showing the layout of all the rooms and spaces of a particular floor in a house as viewed from above. Deep drawing is a three-dimensional view of any object. So this is what we have learned about floor map and 3D shape. So floor map and deep drawing is two different things. Floor map is the outline of any floor or outline of any house. But deep drawing is nothing but a professional and 3D model of that house. That is called deep drawing. And who draw these 3D shapes or the floor map or deep drawings are known as architect, because you know the buildings, the bridges, the towers are sketched by professionals that are called architect. Architect is hired to draw the 3D view or floor map of any house, so that after drawing after making the house, how our house will look like. इस तरह से जो आर्किटेक्ट होते हैं वो उस घर का 3D मॉडल बना के या फिर एक फ्लोर मैप पे पेज पे दिखा देते हैं कि ये घर जब आपका बनेगा तो ये यहाँ पे चीज़ें अगर रहेंगी तो इससे आपके स्पेस भी ज़्यादा बचेगा, आपके घर का जो वेंटिलेशन और फ्रेशनेस है वो भी बरकरार रहेगी, और ये घर देखने में भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसमें कहाँ पे सीढ़ी कहाँ पे रहेगी, विंडो कहाँ पे रहेगी, लिविंग रूम बेडरूम कहाँ पे बनाए, किचन कहाँ पे बनाए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की रहती हैं। और आर्किटेक्ट ही अगर किसी फ्लोर मैप की जगह पे 3D मॉडल बनाते हैं तो उसको 3D मॉडल कंप्यूटर से या फिर स्केच द्वारा बना के दिखाते हैं कि जब ये घर रेडी हो जाएगा आपका तो ये किस तरह से दिखेगा, मतलब किस तरह से इसमें ये कलर लगाएंगे, तो ये उसका एकदम 3D मॉडल वो क्या करते हैं रेडी करके तैयार रख देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस, आफ्टर बिल्डिंग द हाउस, हाउ विल इट लुक लाइक. So we move further so you can now at your home you can draw a floor map, because to draw a deep drawing is some difficult. So you will draw the floor map of your house. Where is your bedroom, where is your bathroom, where is kitchen, and where is living room. If there is a garden, you mention it and draw a map and send it to me on my WhatsApp. Thank you for the class.